Good morning, students. Today's our topic is types of computers. Computers can be classified in different ways, like classification according to the data representation, classification according to the purpose or uses of computers, and next classification according to the performance criteria. Now first classification according to the data representation. So according to data representation, we can classify computers in three types. First, digital computer, second, analog computer, and third, hybrid computer. Then, what is an digital computer? Digital computers take inputs in the form of numbers, letters, and special characters. These computers always process data into a digital value. Example of digital computers are like calculator and electronic computer. Now second type is analog computer. Analog computers do not operate on digital data. Instead, they operate on data represented to them in the form of continuously variable quantities like temperature, pressure, time, etc. Examples of digital analog computer are like speedometer, wall clock, and voltmeter. Now in this category, third type of computer is hybrid computers. Hybrid computers combine the features of both the digital computer and analog computers. The main objective of designing of this type of computer is to perform very complex tasks. Example of hybrid computer is intensive care unit ICU that measures a patient heart function, pulse rate, temperature, and other vital signs. So, according to data representation, हम कंप्यूटर को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें कि जो आपका कंप्यूटर है वो डिजिटल फॉर्म में डेटा को लेगा और उस पे काम करेगा, जैसे कि हमारे कैलकुलेटर और जो हमारे कंप्यूटर है वो. सेकंड टाइप जो कंप्यूटर होगा वो आपका एनालॉग कंप्यूटर होगा, जो साइन पल्स के अकॉर्डिंग उसकी आपके सिग्नल लेगा और उन्हीं पे काम करेगा. ये आपका जो स्पीडोमीटर है, जो कार या किसी भी व्हीकल में लगा होता है, जो आपका स्पीड मेजर करता है, या आपका जो नॉर्मल वॉल क्लॉक होता है, और ये आपका वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज होती है उसको मेजर करता है. तो ये आपका एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं. इसी क्लासिफिकेशन डेटा रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर आपका होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, जिसमें आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के फीचर्स होते हैं, जो कि काफी जो मुश्किल काम होते हैं उनको करने में आपकी हेल्प करता है. जैसे कि यहाँ पे दिया आईसीयू के अंदर जितनी भी मशीन्स लगी होती हैं वो क्या करेंगी, ह्यूमन बॉडी से जो पेशेंट है उसके हार्ट जो फंक्शन करता है, हार्ट बीट, पल्स रेट, टेम्परेचर वगैरह आपका मेजर करेगा, और जो आपके डिजिटल कंपोनेंट हैं जो कि आपको कंप्यूटर की तरह वहां पे मशीन्स दिखाई देती हैं, उन कंपोनेंट्स को वो सिग्नल सेंड करेगा. Now next classification according to the purpose or uses. According to the purpose or uses of a computer, we can classify computer in two types. First, general purpose computer or specific purpose computers. First type, general purpose computers are the computers that can be used for all general needs of all environment and users. The example of this type of computers, the computer that you use at your school, college, office and home are general purpose computer. जो आप स्कूल में यूज करते हो कंप्यूटर, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आपकी होती हैं. उनमें आप जैसे MS वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन आप कर सकते हो, और पावर पॉइंट के अंदर आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो,
या आपकी कुछ गेम की एप्लीकेशन भी होती हैं जिनमें आप गेम खेल सकते हो, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन होती हैं और ये सभी टाइप के यूजर के लिए कंप्यूटर होती हैं। नेक्स्ट जो इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं वो आते हैं स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू हैंडल स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। दे प्रोवाइड रिजल्ट वेरी क्विकली एंड एफिशिएंटली। क्यों ये वेरी क्विकली और एफिशिएंटली रिजल्ट देते हैं? क्योंकि इनको हमने एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ही बनाया जाता है इन कंप्यूटर्स को। एग्जाम्पल ऑफ दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर सैटेलाइट ट्रैकिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल डायग्नोसिस एंड वेदर फोरकास्टिंग। जो आपके इस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक फर्स्ट सैटेलाइट ट्रैकिंग, जो सैटेलाइट हमारे स्पेस में होते हैं उनको ट्रैक करते हैं पोजीशन, या उनसे जो सिग्नल्स या जो डेटा आता है उसको क्या करते हैं, गैदर करते हैं और फोरकास्टिंग करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहाँ पे यूज होता है? ये आपका जितने भी आपकी एयरलाइंस हैं, जो आपके प्लेन्स वगैरह हैं आपके, उनको कंट्रोल करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल आपका सिस्टम होता है। नेक्स्ट मेडिकल डायग्नोसिस में क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर जो आपकी डिजीज है उसके सिम्टम्स देखते हैं क्या है, और उनके लिए पर्टिकुलर जो मेडिसिन है वो क्या होगी, वो सब ये सिस्टम होता है मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम। नेक्स्ट आपका वेदर फोरकास्टिंग, ये क्या करेगा, जो भी आपका वेदर की फोरकास्टिंग करेगा, अनुमान लगाएगा कि अगले 2 या 3 दिन आपका जो मौसम है वो कैसा रहेगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। According to the capacity and performance criteria of a computer, we can divide computer in 4 major categories. First, microcomputer, second, mini computer, mainframe, and last, supercomputer. Microcomputer, we can further divide microcomputer in 3 categories. First, desktop, laptop, and palm top. Now, first of all, microcomputers. A microcomputer is small and low-cost digital computer. They are mainly used for managing personal data of a small company or an individual. That's why they are also called personal computers. The microcomputer originated in late 1970s. ये आपके 1970s में आए थे माइक्रोकम्प्यूटर, और जो इनका साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है और कॉस्ट भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, और ये किसी पर्टिकुलर एक छोटी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल के काम को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। नाउ माइक्रो कंप्यूटर फर्दर डिवाइड into 3 categories. First, desktop. It is the most widely used computer in the world. These computers are placed on the top of the desk. That's why they are known as desktop computer. Look at this picture. This is a desktop computer. Now, second type of microcomputer is laptop. These computers are so small, that's why they can be placed on your lap. लैप मतलब आपकी गोदी में भी आप इसको रख सकते हो, और ये साइज में आपके छोटे होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर से। These are portable computers and can be carried from one place to another. These are expensive than desktop computer. Means जो पोर्टेबल का क्या मतलब है कि ऐसे कंप्यूटर जो आप जिनको उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे आप ले जा सकते हो। तो ये जो आपके कंप्यूटर होते हैं लैपटॉप कंप्यूटर, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के कंपैरेटिव। ये देखो, ये आपका लैपटॉप है, आप मुझे लगता है आप सब लोगों को पता ही होगा कि लैपटॉप क्या होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, palm top computers. These computers can be placed on your palm. That's why these are called palm top computer. Therefore, these are called palm top computers. These are the smallest computer from the computer family. ये सबसे छोटे होते हैं और इनके ये एग्जाम्पल देखिए, पैड, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टैबलेट पीसी, लेटेस्ट मोबाइल फोन। जितने भी आपके लेटेस्ट मोबाइल या स्मार्टफोन हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं।
Now notebook, this is a picture of palm top computer. The next category according to the performance criteria is mini computer. Mini computers generally large size, more main and secondary memory and powerful processor than a micro computer. मिनी कंप्यूटर जो आपका माइक्रो कंप्यूटर था उसके कंपैरेटिव इनका साइज बड़ा होता है, इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो ज़्यादा होती है, इनके पास मेन और सेकेंडरी मेमोरी भी ज़्यादा होती है. दीज आर द एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर. PDP-11, IBM 800 series, VEX 7500. Now this is the picture of mini computer. Next type of computer according to the performance is mainframe computers. These computers have greater size, very costly, more storage capacity and higher speed as compared to mini computer. These computers contain multiple central processing units, mean CPU. These computers can handle thousands of users at a time. Now example of mainframe computer, VEX 800 and CDC 6000. Now this is the picture of mainframe computer. Next, classification according to the capacity performance criteria. The last computer is supercomputer. Supercomputers are the fastest, costliest and more powerful computers. These computers contain multiple processors that work together to solve a single problem. The size of these computers is 100 times bigger than a personal computer. Means जो आपका सुपर कंप्यूटर है वो सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है. यहाँ पे दिया है साइज ऑफ द कंप्यूटर इज 100 टाइम बिगर देन अ पर्सनल कंप्यूटर. जो आपका माइक्रो कंप्यूटर था उससे 100 टाइम्स बिगर होता है ये. और इसमें मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, आपके मल्टीपल सीपीयू होते हैं जो कि सब मिलके किसी भी जो प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है. नाउ यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट वेदर फोरकास्टिंग, petroleum exploration and production, nuclear reaction and image processing. जो ये एरिया है इनमें आपका सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है. जैसे वेदर फोरकास्टिंग में वेदर को फोरकास्ट किया जाएगा कि अगले 3 या 4 दिनों में आपका जो वेदर होगा उसमें क्या कुछ चेंजेस होंगे. इसी प्रकार से जो आपका पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में क्या होता है कि अर्थ के अंदर आपको पता है कि पेट्रोलियम पाया जाता है, तो वो सर्च करते हैं ऐसा कि कहाँ पे अनुमान लगाते हैं कि पेट्रोलियम हो सकता है, और होने के बाद जो उसका रिफाइनरीज में भी सुपर कंप्यूटर को यूज किया जाता है. अलग अलग टेम्परेचर पे हम अलग अलग प्रोडक्ट को निकालते हैं. न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए या फिर इमेज प्रोसेसिंग में, इन सब में हम क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं. नाउ these are the example of supercomputer. First supercomputer developed in 1964 is the CDC 6600 supercomputer. Now for India's first supercomputer is was developed in 1991 by CDEC. CDEC की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में है. इसी तरीके से जो इंडिया का जो और दूसरा सुपर कंप्यूटर है वो है अनुराग. अनुराग इज अनदर सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया. दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्रॉम सुपर कंप्यूटर फ्रॉम सिवाय, जो कि आपका कहाँ है, BHU, सुपर कंप्यूटर एट IIT BHU. थैंक यू.